Good morning, students, and welcome. Today it is your first lecture of this academic year 21-22. So we'll start with our new lessons 1.1 A Time to Believe. It's a poem. It is the time to believe means it is a time to have believe in ourselves. अपने पर विश्वास रखना. To believe in ourselves. Okay. So it is given a time to believe. See here, think, choose and fill up the labels with what a sunrise symbolizes. An acrostic is a poem or a write-up in which the first letter of each line forms the word when it is read vertically. See, friend. Friend. What does a friend means? F stands for faithful. R stands for reliable. I inspiring, E encouraging, noble, dedicated. And this is the meaning of the friend. Friend should be faithful, जिस पे आप विश्वास कर सकते हो. Faithful मतलब आपके प्रति वो एकदम नियर है. Have a trust in him. He should also trust you and you should also trust you. वो कभी आपको धोखा ना दे. He should be faithful to you. रिलायबल जिसके पर हम विश्वास कर सके, ऐसे जो कभी गद्दारी ना करे, धोखा ना दे. इंस्पायरिंग, ही विल इंस्पायर यू इन एनी थिंग दैट यू आर गोइंग टू अचीव. अगर आप कुछ करने जा रहे हो वो अच्छा है आपके लाइफ में, इट इज़ गुड फॉर यू. ही विल ऑलवेज कीप ऑन इंस्पायरिंग यू. ही विल इवन एनकरेज, आपको एनकरेज भी करेंगे. नोबल अच्छा एंड डेडिकेटेड. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेंड. मीनिंग ऑफ. Now let's see. Be certain. Now believe and faith. As it is done here, you have to fill up the same things over here. B means certain of. E stands for something. L and all everything over here. The letter stands for some words. Now let's go to our poem. A time to believe. To believe is to know that every day is a new beginning, is to trust that miracles happen and dreams really do come true. To believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of a stardust sky and the wisdom of the man in the moon. To believe is to know the value of a nurturing heart and the innocence of a child's eye and the beauty of an aging hand. For it is through that teaching we learn to love. To believe is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again. To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen and all our hopes and dreams are within reach if only we believe. Okay, this is the poem by B.J. Montbazar. Okay, so what did you understand from this poem? हमने अभी read किया उसको. Did you get any idea? Well, let's see what it is there in the first stanza. To believe is to know that every day is a new beginning. We have to believe that every day is a fresh one and it's a beginning of the day. हर एक दिन को, हर एक जब सुबह होती तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है. So you should believe that every day has a new beginning. It's a new beginning of the life. Is it to trust that miracles happen and dreams really do come true? It is to trust. We should trust. अब में विश्वास होना चाहिए कि मिरेकल्स हैपन, ऐसे कुछ चमत्कार होते हैं ज़िंदगी में जो हम कभी सोच भी नहीं सकते. वी डोंट बिलीव दैट ऐसा कुछ चमत्कार हो, पर ऐसे चमत्कार ज़िंदगी में होते हैं जो हमने कभी सोचे नहीं. इट विल ट्रूअली वन डे इट विल हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू. वॉट एवर द ड्रीम्स यू हैव इन योर लाइफ, that you have to achieve something, you want to be a successful person, you want to be a good person, doctor, engineer, whatever your profession, what you would like to do, you are dreaming of that things. If you really try, if you really believe in yourself, that dreams what are you dreaming about of your future will naturally come true. It will be true.
To believe is to see angels dancing among the clouds, to know the wonder of the starless sky, and the wisdom of the man in the moon. To believe is to see an angels dancing among the clouds means to admire the sky. आसमान में देख के उसको निहारना, उसको देख तारों को, चंदा मामा, इवन वॉट एवर द यू सी इन द planets and all. Please try to believe in that you have to believe that the angels are dancing among the clouds means admire the sky, the wonderful sky we see. To know the wonder of the star, the sky, and the wisdom of the man in the moon. See what the meaning it is shown. Stardust means having a magical quality. To know the wonder of the star, the sky, and the wisdom of the man in the moon means there is a man, the wisdom, thinking of that there is a man in the moon. मतलब अगर हम काल्पनिक तौर पे देखने जाए, ऐसे what the poet think, everything the poet mention ऐसे something एकदम natural है. What it is it is personified as a person. किसी चीज़ को लिविंग, किसी चीज़ को हम लोग उनको पर्सनाफाई किया जाता है इस इंसान की भावनाओं की जैसे, मतलब उसके भाव की तरह. मतलब वॉट एवर वी डू इट इज़ एक्सप्लेन, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन एंड पर्सनिफाइड एज इट इज़ अ पर्सन. उसके जो भी एक्शंस है स्काई में, स्टार्स के, मून्स के जो भी है, इट इज़ शोन एज इट इज़ अ ह्यूमन बींग. यू हैव टू फील दैट देयर इज समवन देयर इन द स्काई. To believe is to know the value of the nurturing, the innocence of the child's eye, and the beauty of an aging ant. For it's through their teaching we learn to love. To believe is to know the value of the nurturing heart. Means to believe to the person who has cared for you. Your parents, your grandparents, they looked after you, they nurtured you. आपके प्रति प्यार है उनको, उनका लगाव है, आपका ध्यान रखते हैं, दे केयर फॉर यू. तो यू हैव टू कीप द वैल्यू. उनका जो इमोशंस की, फीलिंग्स की हमें कदर करनी चाहिए. जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने प्यार हमें दिया है, जो केयरिंग उन्होंने दिया है, जो उन्होंने हमारे लिए जो भी लाइफ में समझौते किए अपने लिए, अपने लाइफ के प्रति, अपने तरफ ना देखते हुए अपने बच्चों की तरफ उन्होंने केयर किया. उनकी सारी खुशियाँ अगर उन्होंने ये करने के लिए पूरी करने की कोशिश की, तो यू हैव टू कीप द वैल्यू ऑफ दैट. उनकी भावना को हमें कदर करनी चाहिए. द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड आइज एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड. मतलब जो बुजुर्ग है, इट इज़ नॉट दैट वो अभी एज हो गए, दे आर ऑफ नॉट यूज, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. वो आपकी ऐसे नहीं होना चाहिए आपकी सोच. उन्होंने ही हमें प्यार करना सिखाया है, उन्होंने हमें आगे बढ़ना सिखाया. हमारी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें हैं उन्होंने हमेशा उसको दूर करने की कोशिश की. तो वो उस बुज़ुर्ग लोगों के बारे में हमें प्रति उनकी भावना को समझना चाहिए, और उनकी उन्होंने जो भी ये किया हमारे प्रति बलिदान किए, उसकी हमें सराहना करनी चाहिए, उसको हमें ध्यान देना चाहिए इस चीज़ की. द ब्यूटी ऑफ द एजिंग हैंड एंड फॉर इट्स थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव. क्योंकि उन्होंने ही सिखाया है हमें. उन्होंने हमेशा शिक्षा बच्चों को अपने पेरेंट्स से सबसे पहले मिलती. द चाइल्ड कम टू नो द गुड एंड बैड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, दैट इज़ फ्रॉम योर पेरेंट्स. एंड मम्मी पापा सिखाते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, अच्छी बातें याद करनी चाहिए. तो दिस आर देयर टीचिंग दैट वी आर गुड नाउ. अभी हम अच्छे हैं, स्वभाव के अच्छे हैं, हम कुछ ये कर रहे हैं, तो इसकी रीज़न है हमारे पेरेंट्स, जो क्योंकि उन्होंने पहले से हमें सिखाया है कि हमें अच्छी तरह से रहना चाहिए, दूसरे की कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ये सब चीज़ें उन्होंने सिखाया. लोगों के प्रति प्यार किस तरह करना चाहिए, अपने भाइयों से, माँ से, भाई से, पिता से. तो दिस आर द थिंग्स दे ओनली टॉट इट. So you should able to value their feelings. To believe is to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again. To believe is to find the strength. Whatever the strength is there, sometimes something goes wrong in your life. कुछ चीज़ें ऐसे हो जाते हैं कि आप हताश हो जाते हो, कमज़ोर पड़ जाते हो, ऐसा लगता है कि हमारे
साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। यू शुड नॉट थिंक दैट वे। हमें अपने सारी ताकतें ये करना है, इकट्ठा करना है, और वी हैव टू फील इन स्ट्रेंथ। हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये जो हुआ है वो तो इट्स अ पास्ट थिंग्स, इसको हम जुटला नहीं सकते। पर आगे जाकर अगर हमें कुछ ज़िंदगी में सक्सेस पाना है तो हमें अपने आप को बटोरना होगा, अपने फीलिंग्स को इकट्ठा। हाँ, आई कैन डू इट। ये जब चीज़ हमें फीलिंग्स आएगी, जो स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ आती है अपने, ये कभी कभी इनर स्ट्रेंथ हमें दूसरों से भी मिलता है, वो हमें ये करते, मोटिवेट करते हैं कि हाँ अच्छा होगा। कभी अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इट माइट बी योर फ्रेंड सर्कल, या वो कभी कभी ये इनर फीलिंग आपके अंदर भी आता है कि हाँ जो घटा है, जो गलत हुआ है, या जिससे मैं हताश हो के अभी आई एम सिटिंग ओवर हियर, इन सब चीज़ को भूल के अब मुझे आगे बढ़ना है। तो तुम सारे ताकत अपने अंदर समा लेते हो, इकट्ठा करते हो, और ताकि आगे हमें दूसरे चीज़ों का सामना कर सके। तो इट इज़ क्वाइट नेसेसरी टू बिलीव इन योर सेल्फ। अपने एक बिलीव होना ज़रूरी है कि हाँ मैं इन सब तकलीफ़ों से उबर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। To believe to find the strength and courage that lies within us when it is time to pick up the pieces and begin again. When it is time to pick up the pieces and again, देखिए see over here. Aging means growing old, as I told you. Picking up का pieces का मतलब होता है जो भी तकलीफ हुई है, जो भी whatever you experience in your life and that is a bad experience or whatever it is, उन सबको हमें याद रखना है, उसे एक बटोरना है, हाँ ऐसे कुछ सीखना है, और जो भी ये हुआ है उससे उभर के बाहर आना है। ओके, इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन। इन सब चीज़ को ये करके अपना के उसे वहाँ से उससे उभरना है। To believe is to know we are never alone, that life is a gift and this is our time to cherish it. To believe is to know that we are never alone. ये हमें बिलीफ होना चाहिए अपने हाथ में कि हमें अकेला नहीं हुआ। हमारे जैसा और भी बहुत सारे लोग हैं, इस चीज़ से गुजरते हैं, तकलीफ़ों से गुजरते हैं, कुछ भी परेशानी से गुजरते हैं। कभी हादसा होता है, बड़ी बुरा हादसा भी होता है, जिसे उभरने के लिए बड़ी मुश्किल वक्त लगती है। तो इट इज़ टू बिलीव दैट वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं हैं। एंड देयर आर पीपल्स हु केयर फॉर यू, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपके लिए केयर करते हैं। एंड सो यू आर नॉट अलोन, दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड देयर इज टू टाइम टू चेरिश इट। एंड द लाइफ इज द व्हाट इज दिस, लाइफ इज अ गिफ्ट, एक गिफ्ट है हमारे लिए। और जो ज़िंदगी हमें मिली है, द लाइफ यू गेट, यू हैव टू चेरिश इट, मतलब उसे हमें संभालना है। ऐसे नहीं कि उसे बिखरने के लिए छोड़ दे, कुछ बुरी आदतें लग जाना, बुरे संगत लेना, लाइफ में कुछ ना कर पाना, ये सबसे बड़ा, ये आपके लिए भी बहुत बुरी बात है, और आपके फैमिली मेम्बर्स व्हाटएवर द पीपल्स हु केयर फॉर यू ऑल्सो, इट्स अ ये डिफ़िकल्टी है उनको इन सब चीज़ों को सामना करना। तो ये जो लाइफ हमें मिली, वी हैव टू चेरिश, उससे अच्छे से बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए। इसको हम चेरिश करना बोलेंगे। ओके, होल्ड समथिंग एज ए डियर एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू। अपने लाइफ को चेरिश करना है, उसको एक सक्सेसफुल बनाना है, एक अपने आप के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी। तो इट इज़ अ लाइफ, वी कैन से इट्स अ गिफ्ट टू चेरिश इट। To believe is to know that wonderful surprises are just waiting to happen and all our hopes and dreams are within if only we believe. Means to believe is to know the wonderful surprises. ऐसे होते हैं कभी कभी, ऐसे सरप्राइजेस हमारे लाइफ में होते हैं विच यू नेवर एक्सपेक्टेड कि इट विल कम, वो सडनली हो जाता है। आप सोचते हैं हाँ मुझे ये जॉब मिलेगा, पता नहीं मिलेगा नहीं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कैंडिडेट वगैरह, I'll get it done. And luckily you find surprise that you have been selected for that job and you got what you wanted. Whatever किसी और भी चीज़ में हो, competitions हो, whatever you have attempted and you think you might not be able to achieve that thing. पर क्या होता है, suddenly you come to know that you have achieved what you wanted. तो surprises may come in any time. Surprises ज़िंदगी में कभी भी आ सकती है and it will surely come. But if you have होप इन योर सेल्फ, इफ़ यू रियली बिलीव इन योर सेल्फ, अगर अपने आप में विश्वास है, आप में होप से, तब भी आप इन सब चीज़ों को आप पूरी कर पाएंगे।
एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन इफ ओनली वी बिलीव. ये सारे ड्रीम्स, सारे जो होप्स हमारे ज़िंदगी में हैं कि हम फ्यूचर में कुछ करेंगे, तब भी कर पाएंगे जब हमारे अपने आप पर विश्वास होगा. सो यू हैव टू, इट इज़ क्वाइट नेसेसरी टू कीप अ बिलीव इन योर सेल्फ टू अचीव समथिंग एंड टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, okay, or a good citizen. This is what the poem is. I hope you understood this poem. ये मोटिवेशनल पोएम है कि अपने आप में जो भी इंसान, अगर समझो ये हुआ है, हताश हुआ है, अभी ये जो पैंडेमिक चल रहा है इससे बहुत सारे लोग क्या हुए हैं, हताश हो चुके हैं आर्थिक तौर से, एवरीथिंग फ्रॉम ऑल द साइड. ये एक चीज़ ऐसा है मोटिवेशनल है कि ये वक्त जो है वो पल भर का है, इट विल गो एंड दिस अच्छे दिन आपकी ज़िंदगी में आएंगे. बट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ, हम इस तकलीफ़ से, इस परेशानी से उभर के बाहर आएंगे. जब हमें खुद में यकीन होगा तब ही हमसे ये हो पाएगा. ओके, तो दिस इज़ अ टाइम टू बिलीव. सी ओवर सम असाइनमेंट्स आर देयर, वी हैव टू रीअरेंज इट. Here are some questions. What should one know and trust every day? अपने आप पे क्या you should know that something will be sure if you have trust in yourself and you believe in yourself. Okay, what are the two supernatural references in the second stanza? किसके बारे में लोग ने डिस्कस किया है? Nurturing, provide. These are all meanings you have to learn over here. Understand it. मीनिंग्स को लर्न करना है आपको. ओके, दैट्स ऑल. मेक अ लिस्ट ऑफ 6 थिंग्स दैट द पोएट वांट्स टू एक्सेप्ट एज ट्रूथ. क्या क्या चीज़ें हैं पोएट हमें बोलता है एक्सेप्ट करने के लिए? दैट यू हैव स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ, देयर इज करेज, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू चेरिश इट, एंड वॉट एवर द थिंग्स हैज बीन इन योर फ्यूचर, यू हैव टू पिक इट अप ऑल एवरीथिंग एंड अपने स्ट्रेंथ करके हमें उससे ऊपर आना है. दिस इज सम ऑफ द थिंग्स इट इज़ बीन मेंशन इन द पोएम. सी पॉजिटिव क्वालिटीज ऑल्सो. पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए? दैट इज मैंशनड ओवर हियर. टू बिलीव, टू सी एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स. पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको बताया है. कुछ चीज़ों को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिया जाता है, जैसे स्टार्स आर डांसिंग ओवर द स्काई. तो जब मूव करते तो व्हाट, इसको ये किया गया है स्टार्स कैनल को, उसको इंसान की ये दिया गया, कैरेक्टर दिया गया, जैसे कि इंसान नाच रहा है. तो क्या, दैट इज़ द पर्सोनिफिकेशन. द फिगर ऑफ स्पीच इज दैट पर्सोनिफिकेशन. पर्सन से ये करते हुए, कैरेक्टर से रिलेट करते हुए. Find from the poem 3 other examples of epigram. Epigram means the truth, जो सच्चाई, that is called the epigram. See, the definition is given over here. Lines in a poetry such as above state the general truth. जो रियलिटी है, सच्चाई है, that को उस सेंटेंस को शो करते हुए इस सेंटेंस को can be used as saying or the quotes. This contain the figure of speech called as epigram. Okay, that is a general truth that we cannot deny these things. जो इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते या जुटला नहीं सकते, ऐसे जनरल ट्रूथ जो चीज़ें इन पोएम में आया है, वी हैव टू मेंशन. Only 3 examples are given that you have to mention over here. Okay, I hope you got it. Thank you.